Now continuing to our topics, this has been already been covered in the both the sections B and C, and we were discussing last this slide. Okay, now could anybody let me know what we have discussed in the qualitative and quantitative interviews in the chat? What we have discussed last, qualitative and quantitative interviews. We have just discussed about this term. Kindly write in the chat. What do you understand by this qualitative or quantitative interviews in the layman terms? Or what we have discussed, if you could recall of the yesterday. Hopefully the students are writing. I'm waiting for the answer. Measures of skills. Okay, this is what about the interview. Qualitative or quantitative में कोई कुछ लिखना चाहे. Qualitative about words and expression. Quantitative is about numerical facts and figures. ठीक है, हमने डिस्कस किया था क्वालिटेटिव इंटरव्यू व्हेन somebody is especially being focused on the specific area in the interview. The questions are with respect to the job only, not the common question, not the communication skills, not the personality being judged as such. ठीक है, yeah, could be said. I think quantitative would be focused on the motivation and opinion. That's why qualitative would be the specific interviews, whereas the quantitative would be the journal interviews. Another term that is unstructured observations. Unstructured observation when we are not aware of what we are going to discuss. We are just standing on the some mall. We are just sitting on some mall, observing how the customer is being behaving. I am moving to the different countries. I am seeing what is the basic taste and preference of the people in the restaurants, eating in Delhi, eating in North, South, East, West, or in something outside organization. To analyze रिसर्च ऑब्जेक्टिव बताए, ऑब्जेक्टिव बना लिए कि आई वांट टू एनालाइज एडवर्टाइजिंग स्टैटस नहीं पता देखिए संतोष रानी आपको हर दिन मैसेज करती रहती है. इतना प्यार क्यों? इतना तो मुझे लगता है कि अपनी बेटी को भी नहीं करते होंगे मैसेज, इतना आपको कर देंगे तो बहू को नहीं करती होगी. पहले हम बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी द टर्म वी नो, क्वांटिटेटिव टर्म वी नो. व्हाट इज दिस मल्टीवेरिएट? See, when we talk of the multivariate, it means there must be the multiple variables being involved. Multiple variables का मतलब है dependent और independent variables multiple होंगे. Have you heard of multiple regression? आप लोगों ने multiple regression पढ़ा है अभी तक सबने? मल्टीपल रिग्रेशन क्या टर्म सुनी है? रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन. यू मे राइट yes or no only. If you have gone through, then it is okay. If you have not gone through, then also it is okay. I think my question is clear. Have you heard of linear regression or multiple regression? I'm asking. I don't know. I'm not audible to you people. I'm asking. Have you heard of this term? Okay, fine. अब linear regression किया है?
फॉर द लीनियर रिग्रेशन कैन यू टेल मी? अच्छा, आप लोगों ने लीनियर रिग्रेशन में नहीं किया, ठीक है। ओके, आप मुझे ये बता सकते हैं, एवरीबडी, ऑल ऑफ द 30+ स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास, y इज इक्वल टू a, ये तो मैं कितनी बार यूज करती हूँ क्लास में, तब आपने कहा था हमने डिस्कस किया हुआ, चलिए कोई बात नहीं। bx, ये क्या है? ये टर्म पता है, ये इक्वेशन पता है आपको, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है, और हो सकता है y इज इक्वल टू a प्लस b1 x1 हो प्लस b2 x2 हो अप टू bn xn। एपी सीरीज, जीपी सीरीज तो आई थिंक सबने पढ़ी होगी। ओके, हैव यू सीन दिस टर्म y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स? ठीक है, दिस इज योर लीनियर रिग्रेशन। हमने बात करी थी, हमारे पास हाइपोथेसिस होते हैं, वन इज योर सिंपल हाइपोथेसिस एंड अनदर इज योर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जब मेरे पास ये जो वेरिएबल्स हैं वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल हाइपोथेसिस विल गो फॉर दिस लीनियर रिग्रेशन, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस विल गोज फॉर दिस रिग्रेशन। अब मल्टीपल रिग्रेशन कुड बी कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स ज्यादा है, लेकिन मैं अगर कहूँ मेरे पास, सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी x1 से लेके xn तक है, और दूसरा मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी खाली y नहीं है, इट इज y1 अप टू yn। So in that case, I need to understand this thing कि जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मोर देन वन, तो ऐसे एनालिसिस हो जाते हैं मल्टीपल वेरिएबल एनालिसिस, और उसे मल्टीपल का मल्टी, वेरिएबल का वेरिएट एनालिसिस कहा जाता है। कुछ बच्चों ने यहाँ पर कल लैब में, हमने कहा, मैं हमेशा कहती हूँ कोरिलेट बाइवेरिएट लगा दीजिए, लीनियर में मैंने आपको कहा रिग्रेशन में आप सिर्फ लीनियर चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बाइनरी लॉजिस्टिक, ऑब्वियसली बाइनरी मींस टू थिंग्स, 1 and 0। व्हेन आई टॉक ऑफ मल्टी नॉमिनल लॉजिस्टिक, तो यहाँ पर ये मल्टी वेरिएट एनालिसिस है। दूसरा, कल किसी ने डायमेंशन रिडक्शन में क्लस्टर लगाया था, क्लस्टर कौन से ऑप्शन में मिला था आपको? स्केल क्लस्टर, यहाँ पर बहुत सारे मल्टी डायमेंशन, अनफोल्डिंग, स्केलिंग, ये सारे मल्टीवेरिएट एनालिसिस है। किसी ने क्लस्टर लगाया था, कोई एनीबॉडी रिकॉल क्लस्टर कहाँ था आपका ऑप्शन? ये रे। ओके, क्लासिफिकेशन में देखिए, यहाँ पर है के मीन क्लस्टर, हायरार्किकल क्लस्टर, ट्री, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, 2 स्टेप क्लस्टर। तो जब हम क्लस्टर की बात करते हैं ना, तो इस केस में क्लस्टर एनालिसिस में हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत ज्यादा होते हैं। टू स्टार्ट विद, आप लोगों के सिलेबस में मल्टीवेरिएट एनालिसिस नहीं है, क्यों? बिकॉज फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द लीनियर वन, ठीक है। ऑल तो क्लस्टर का क्या मोटिव होता है, जितने भी जैसे मार्केटिंग स्टडी होती है उसमें क्लस्टर यूज होता है, जिसमें आपके पास आपको सेल्स, प्रोडक्शन, एडवर्टाइजिंग, नंबर ऑफ थिंग्स इंटर रिलेटेड, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, जैसे हमने क्वेश्चनर बनाया, ठीक है, उस केस में हम क्लस्टर क्यों देखते हैं? When they are more than one dependent as well as independent variable. Multivariate clear है सबको? Then the multiple variables are involved in the dependent as well as in the independent variable. Clear? Or you may would like to ask anything in this? नहीं clear तो no लिख दो, so that I could repeat.
इधर राइट नो और इधर राइट यस, एक दूसरे को मत देखो। ओके, रिपीट कर देती हूँ। क्वांटिटेटिव, एक्सप्लोरेटिव, मल्टीवेरिएट की बात कर रहे थे। मल्टीवेरिएट का मतलब है मल्टीपल वेरिएबल्स। मल्टीवेरिएट का मीनिंग ही होता है मल्टीपल वेरिएबल्स। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहता था कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल हो, हाइपोथेसिस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कभी ये बात नहीं हुई कि y भी हो सकता है, यहाँ पर y की जगह y1 भी हो, प्लस y2 भी हो, प्लस y3 भी हो, और ये a प्लस b1 x1 इज इक्वल टू b2 x2 अप टू b3 x3 पर डिपेंड करता हो। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन होते हैं, इसे हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। कुछ क्लियर हुआ? और स्टिल डाउट? मोर देन वन, वो इंडिपेंडेंट भी होगा और वो डिपेंडेंट भी होगा। राइट, यस और नो? ओके, 3-4 बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी क्लास से हर बार की तरह अटेंडेंस चेक करनी पड़ेगी। 29-30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से भी सिर्फ 3-4 बच्चे क्लास में। Those who have the query, no, आप बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं? Those who have written no. You may write again, no, doesn't matter. Quantitative, explorative, multivariate methods where you are considering the figures, facts, taking into consideration. Explore कर रहे हैं तो आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं क्या नंबर ऑफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कोई रिलेशन है। कोरिलेशन चेक कर लेंगे, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो इट्स ओके। तो मल्टीपल कोरिलेशन इज आल्सो देयर। ठीक है, तो दिस मेथड, दिस इज फॉर द एक्सप्लोरेटरी। Another is survey we have discussed. When one is going through survey में हो सकता है आप पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जैसे क्राइम पेट्रोल सीन्स होते हैं। हो सकता है सर्वेज में आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, तो सर्वे वुड इंक्लूड ऑब्जर्वेशन ऑल्सो, सर्वे वुड इंक्लूड एनी पायलट सर्वे ऑल्सो। ठीक है, सेकेंडरी जब आप बुक्स, डाटाबेस, जब आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटाबेसेस को यूज करते हैं। पैनल्स हमने क्लास में डिस्कस किया था, जब बहुत से एक्सपर्ट्स को या ग्रुप ऑफ पर्संस को हम एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के लिए द पर्सन सिट टुगेदर, दैट इज कॉल्ड पैनल्स। Structured observations, when you are having some basis as a descriptive research, then everyone is aware of what is exactly I want to observe. ठीक है, जब मैं ऑलरेडी बेसिस पे वर्क कर रही हूँ तो मुझे अपने सेट पैरामीटर्स पता होते हैं। दैट्स व्हाई माय ऑब्जर्वेशन वुड बी मोर स्ट्रक्चर्ड रेदर देन अनस्ट्रक्चर्ड, व्हिच इज इन द केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग में चाहे आप पायलट सर्वे करिए या आप साइंस के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करिए, बिफोर एंड आफ्टर एनालिसिस करिए। ठीक है, लाइटनिंग का इफेक्ट, रिजल्ट्स का बिफोर कोविड आफ्टर इफेक्ट्स, दैट कुड बी स्टडीड हियर। अब कोई पॉइंट आप रिपीट करना चाहते हैं ऊपर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस इसमें से मुझे बता दीजिए, अदरवाइज विल गो थ्रू फर्दर टू डिस्कस द एग्जांपल्स और टू रिव्यू ऑल दिस थिंग्स। इसमें से कोई है तो देख लीजिए 2 मिनट और मुझे बता दीजिए। कोई भी पॉइंट फास्ट लगा हो, नहीं समझ आया, लेट मी नो। ओके, पायलट सर्वे बात करते हैं। ठीक है, पायलट सर्वे क्या है? पायलट टेस्टिंग, कल भी बात करी थी हमने क्लास में। ठीक है, पायलट सर्वे को एक तरह का सैंपल सर्वे कहते हैं। आप लोगों ने जब भी ड्राइविंग सीखी हो तो जब आप एक प्री डिफाइंड सेटअप में, जो भी पायलट्स हैं उनके लिए अगर आप पायलट्स की भी बात करें, जब पायलट्स कोई भी ट्रेन
एनवायरनमेंट जाता है, और उनको जिस पे ट्रेन तुमको पता है या नहीं पता है? मुझे तो दोनों आंसर चाहिए, यस और नो। ओके, क्या देखिए बच्चे, यहाँ पर एक पर्सन ऑलरेडी बैठा है, ठीक है। ऑल तो उन लोगों के पास ये सारे मॉनिटर्स, अगर आप यहाँ देखें, ये मॉनिटर्स अवेलेबल होते हैं, ये सीट ऑलरेडी अवेलेबल है। एक आपको ऑलरेडी ऐसा सेटअप दिया जाता है कि आपको फील हो कि आपकी ये जो सीट है, गेयर वेयर, ठीक है, तो ये सब कहाँ है, आपकी ये सीट वगैरह अवेलेबल होती है कि लाइक you could really feel in the atmosphere when you would be moving there, ठीक है। ऐसे ही जब हम इसे साइमुलेटेड एनवायरनमेंट कहा जाता है, और ऐसे ही कार ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ऑल, तो कई बार आपको कार्स ऑन द रोड भी, यस, वर्चुअल ट्रेनिंग, यस, वेरी गुड, आई वुड नॉट एबल टू रिकॉल दिस वर्ड, कार ट्रेनिंग सेंटर्स में, ठीक है, यहाँ भी आपके पास एक साइमुलेटेड वर्चुअल ट्रेनिंग एनवायरनमेंट दिया जाता है, ठीक है। ये किस लिए दिया जाता है? ताकि जो एक्सीडेंट्स, रोड बियर होनी है, लाइफ की कॉस्ट हो सकती है, आप किसी को हर्ट कर सकते हैं, या आप ये इस एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये सब ना हो, उस चीज को सेव करने। द सेम इज विद दिस, एक तो है आपका एक्सपर्ट सर्वे और दूसरा है आपका पायलट सर्वे, ठीक है। जब मैं कहूँ मुझे बात करनी है ओवरऑल सर्वे की, ठीक है, जब मैं बात कहूँ कि मुझे करना है एक अपने एनालिसिस के लिए कंप्लीट सर्वे करना है, तो बिफोर गोइंग फॉर कंप्लीट सर्वे मुझे करना है 500 रिस्पोंडेंट्स, मैं बहुत छोटा नंबर ले रही हूँ, ठीक है, अदरवाइज एवरीबडी वुड टेक लाइक इन द जनरली हम बात करें, कोई एनालिसिस रिपोर्ट कुड बी 1000 2000, ठीक है, पर कुड बी एनी। तो जब मैं बात कर रही हूँ मुझे कंप्लीट सर्वे 500 रिस्पोंडेंट्स का करना है, तो मैं अगर पहले चेक करूं कि क्या जो मैं प्रोसेस ले रही हूँ, मैंने जो क्वेश्चनर बनाया है, ठीक है, या मैं एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मुझे चेक करना है पर्सन की लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, ठीक है। तो उसको मैन्युफैक्चर के पहले मैं एक सैंपल टेस्ट कर लूं मार्केट में। उस सैंपल टेस्ट करने के लिए मैंने चूज किया 500 रिस्पोंडेंट्स की जगह मैंने चूज किए 10 या 100 या 20 रिस्पोंडेंट्स, जिसे हम पायलट सर्वे कहते हैं, विच इज बीन डन
to save the cost of the complete survey. This is what your pilot survey means. Is it clear? पायलट सर्वे इज काइंड ऑफ वर्चुअल ट्रेनिंग. अगर आपको कोई चीज सीखनी है, ऐसे ही आपको अपनी रिसर्च को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से देखना है, अपना टाइम सेव करना है, तो फ्यूचर के लिए आप अभी क्या करके चल रहे हैं? आप अभी मान के चल रहे हैं कि आपको अभी कुछ भी सेटअप नहीं करना है, अभी आपको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं करना है, तो आप सैंपल पर्संस के साथ यू कुड चेक ऑल दिस थिंग्स. ठीक है? इज इट क्लियर? यस और नो? कुछ बच्चे तो यस और नो लिख ही नहीं रहे हैं, तो मुझे तो पता ही नहीं क्यों. Am I audible to you people all? Okay. ठीक है. और मेरी स्क्रीन भी विजिबल है आप लोगों को? चलिए ठीक है. ओके. पारस आपको क्लियर हो गया? ओके फाइन. चलिए आगे चल रहे हैं. इसके एग्जांपल्स एक बार रीड आउट कर लेते हैं स्लाइड्स में से क्या क्या है. जस्ट रीड दिस स्लाइड. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन के एग्जांपल एक बार रीड करिए. जब रीड हो जाए जस्ट राइट इन द चैट डन. जब हो जाए डन लिख देना जब व्हेन यू पीपल आर कंप्लीट दिस रीडिंग. Everybody is right to supposed to write done. अब मैं डन के बेसिस पे ये अटेंडेंस जल्दी करना. ओके. बाकी सर रीड कर रहे हैं या अभी उनके फ्रेंड्स ने उनको जगाया नहीं है? 15 students have replied till from Samarjit to Palak. I've already written the names. Then Harshit 16, Dipti. ओके. नेक्स्ट अटेंडेंस बाद में देखेंगे. सिमरन तक डन. बाकी एक्टिव रहिए. बाकी बच्चे जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया वो नेक्स्ट पर लिखेंगे डन. मैंने सिमरन तक नोट किया. उठ जाइए जो सो रहे हैं अभी तक. ठीक है. ऑब्वियसली दिस इज क्लियर टू यू ऑल. अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो इफ आई वांट टू डिस्कस दिस. नेक्स्ट आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस वन. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी दो फॉर्म्स की हो सकती है. हो सकता है आप एक नया टॉपिक ले रहे हो या नया एंगल ले रहे हो. जस्ट रीड दिस एग्जांपल and those who have not written done just mark it done for your attendance. Make it fast. जिन्होंने अभी रिप्लाई नहीं किया लास्ट में वो अब रिप्लाई करेंगे.
तनिष्का आप कर चुके हैं पहले रिप्लाई, बाकी सब रीड कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया है वो रिप्लाई कर दीजिए। डन, जब रीड हो जाए आप लोगों का। Those who have not replied for the previous example would have to reply for this. Four new names, two old names. चलिए फिर आगे चलते हैं, बाकी लोग अटेंटिव नहीं है अगर तो। शिरीष अनम्यूट करिए अपने आप को। शिरीष, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट, काइंडली अनम्यूट। डन हो गया, कोई बात नहीं, आप तो आई अभी हैं। आज मैंने आपको, एक स्टूडेंट बाहर चला गया तो उसकी वजह से आपको एंट्री देनी पड़ी मुझे, मन तो नहीं था। जल्दी करिए। शिरीष अनम्यूट करिए एक बार। शिरीष अनम्यूट करेंगे? यस और नो लिख दीजिए, अदरवाइज मैं टाइम वेस्ट ना करूं, मुझे अटेंडेंस नहीं लगानी है आपकी। तो ओके फाइन शिरीष, आई एम नॉट कंसीडरिंग यू इन द क्लास। ओके, कौन एक्सप्लेन करेगा दोनों एग्जांपल्स को? एनी ऑफ यू, दोज हु हैव नॉट रिटन डन, और जिन्होंने नहीं भी लिखा, कौन बताएगा? विशेष आप बताइए, आपने भी कुछ नहीं लिखा अभी, आप शायद है ही नहीं अवेलेबल। अर्षित नेगी ने भी नहीं लिखा। जिन्होंने नहीं लिखा मैं उनको ऑप्शन दे रही हूँ अनम्यूट का, अगर वो अवेलेबल होंगे तो दे वुड अनम्यूट, अदरवाइज वुड नॉट। So I have given the option to Divya, Sahil Sehgal, श्रेया। ओके, तो ये सारे बच्चे सो ही रहे हैं, बेसिकली फिर अटेंडेंस का कोई फायदा नहीं है। ठीक है प्रफुल्ल, संगीता आप अनम्यूट कर लीजिए, आपने अभी लिखा है बस। डन। तनप्रीत, मेधा, शुभी। Okay, I have asked lots of students to unmute, but you are not. Either you people are writing in the chat that why you have not unmuted yourself. Thank you very much. Carrying forward. Okay, इसमें कोई डाउट है? ये एग्जांपल्स क्लियर टू ऑल? एक्सप्लोरेटरी के न्यू एंगल्स एंड न्यू टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं। Here comes ओके, कौन से केसेस में हमें कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करना चाहिए? ठीक है, सपोज आपने कोई स्टडी प्राइवेटली करनी है या पब्लिकली करनी है, मतलब वो सबको अवेयर हो कि आप ये स्टडी या रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा, आप चाहते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी की, तो बेसिकली आप नहीं चाहते ना कि वो जो आप प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, चाहे आप कोई अनफेयर मीन्स नहीं ऑप्ट कर रहे, आप अपना क्वेश्चनरी फिल करवा रहे हैं, बट दे मस्ट नॉट बी अवेयर, तो आप ऐसी चीजें चाहते हैं नॉन कम्युनिकेबल हो। तो
rest person must be unaware, but if you want to have the participants to be communicable, being aware of your topic, not an issue कि आपको कहाँ पर किससे बात करनी है, ठीक है। इस केसेस में अगर आप चाहते हैं पर्सन अवेयर हो, कम्युनिकेबल हो, तो हो सकता है आप जब उनसे कोई क्वेश्चनर्स पूछ रहे हैं, टेलीफोनिक सर्विस कर रहे हैं या कोई फेस टू फेस सर्वे कर रहे हैं, तो आपको उनसे क्विक रिस्पॉन्सेज मिल जाए, कंसील्ड। दे विल डिस्कस यू ईच एंड एवरीथिंग जब आप उनसे फेस टू फेस जा रहे हैं। पर्सनल टच होगा जब हम कहते हैं व्हेन यू आर हैविंग द ऑनलाइन शॉपिंग और द पर्सनलाइज शॉपिंग एट द सेंटर, तो ऑनलाइन शॉपिंग में आपको पर्सनल टच नहीं मिलता है। सो टेलीफोनिक सर्वे में लिटिल बिट पर्सनल टच है, बट ज्यादा पर्सनल टच वुड बी इन द फेस टू फेस सर्विस। कन्वेंशनल, हम कहीं जो स्ट्रक्चर क्वेश्चनर टेलीफोन इंटरव्यूज हैं या ऑनलाइन है, ये हमारे पुराने कन्वेंशनल मीन्स है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं ऐसे प्रैक्टिसेस की, अगर हम चाहते हैं पर्सन या पूरी सोसाइटी या मार्केट को अगर पता भी चल जाए मैं ऐसा कोई सर्वे कर रही हूँ, तो इट वुड नॉट इफेक्ट माय रिसर्च हाइपोथेसिस। दूसरे में है कि मैं चाहती हूँ ये चीजें मार्केट में डिस्क्लोज ना हो टू मोस्ट ऑफ द पीपल, वो प्राइवेट रहे, नॉन कम्युनिकेबल रहे, और द पीपल मस्ट नॉट बी अवेयर ऑफ। उस केस में आप स्ट्रक्चर्ड की बजाय अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ किसी सिंपल कुछ ही लोगों से उस टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। यू कुड हैव द फोकस ग्रुप इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आप कुछ एक्सपर्ट्स ओपिनियन ले सकते हैं या अपनी टीम के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। आपको कैसे रिस्पॉन्सेज ऐसे में मिल सकते हैं? इंट्यूटिव एंड इमेजिनेटिव। इंट्यूटिव का क्या मतलब होता है? अरे कुछ नहीं कर रखा लोग, एनी ऑफ यू? फिलहाल वो टूट रही है, वहाँ टूट रही है वो, Imaginative, I think everyone is clear कि imaginative one could have would goes to the अपने माइंड्स को, वोकैबुलरी को जॉग आउट करने के लिए one would think of. Intuitive would you have the intelligent answer. आप क्योंकि एक जो डिस्कशन कर रहे हैं, इंट्यूटिव का मतलब आपकी इंटेलिजेंस से होता है। जब आप कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं एक एक्सपर्ट्स के साथ, तो बेसिकली यू वुड हैव द बेस्ट रिस्पॉन्सेज विद इन द लिमिटेड नंबर ऑफ द रिस्पॉन्डेंट। चाहे वो रिस्पॉन्डेंट्स आपके पैनल हो, चाहे वो रिस्पॉन्डेंट्स आपकी टीम हो, चाहे वो रिस्पॉन्डेंट कुछ जनरल पब्लिक भी हो। दूसरा, आप अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। In the case, you can have the naturalistic approaches on a one-to-one basis. आप उनसे, जैसे मैंने बात किया कि आप पब्लिकली भी कुछ पर्सन से डिस्कशन कर सकते हैं, बट आप उनको अपना ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे, यू आर जस्ट डिस्कसिंग। जैसे मैंने कल क्लास में भी बात करी कि अगर आप एक मॉल में है या एक शॉप में है, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंपनी, आप सैमसंग के रिप्रेजेंटेटिव किसी मोबाइल की कंपनी में है, तो उसको जरूरी नहीं रिवील करना है द पर्सन इज द सैमसंग रिप्रेजेंटेटिव, आई वेयरिंग द ड्रेस कोड और अदर। वो जर्नल क्लोज में ऐसे भी रिवील कर सकता है कि वो सेल्समैन है एंड जस्ट आस्किंग योर लाइक्स एंड डिसलाइक। उस केस में आपको जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो अनकॉन्शियस और रिप्रेस होंगे। बेसिकली द पर्सन वुड आल्सो आंसर इन द जनरल टर्म्स ओनली। वो आपके लिए अनकॉन्शियस है तो उसकी बायसनेस इन्वॉल्व नहीं होगी। रिप्रेस इन द सेंस दैट कुड बी, मतलब अगर आप उसको अपना ऑब्जेक्टिव बता देते, क्या पता वो आपको उस हिसाब से कुछ एड ऑन, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे पाता दैट वुड बी यूजफुल टू इट। इस केस में हो सकता है आपको ऐसी इंफॉर्मेशन ना भी मिले। दिस इज व्हाट अबाउट ऑल दिस। इसमें से कोई पॉइंट आप कोई रिपीट करना चाहता हो तो लेट मी नो इन द चैट। क्लियर है? शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके, सेकेंडरी सोर्सेज रीड कर लीजिए और लास्ट फिगर्स ही कौन कौन से होते हैं।
Hit this slide. दिखाओ मुझे दिखाओ। लो मैं हाथ से ही कर देता हूँ, दिखाओ। Next. एग्जाम्पल रीड कर लीजिए। केस स्टडी में कल कईयों को डाउट था, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो लेट मी नो। किसी का रीड हो गया और मैंने स्लाइड चेंज करी, जस्ट आस्क मी टू बैक सो दैट आई कुड मूव एट द बैक। शिवम अनम्यूट करिए, एक बार बताएंगे, डिस्कस करेंगे केस स्टडी में क्या डिस्कस हुआ है। शिवम, आई हैव आस्क्ड यू टू अनम्यूट। केस स्टडी मेथड हमें क्या बता रहा है, कौन बताएगा? नेक्स्ट एक्सपर्ट ओपिनियन। यस, एक्सपर्ट ओपिनियन डन हो गया या ऐसे डन डन लिखे जा रहे हैं? ओके, रेस्ट एग्जांपल्स आप रीड कर लेंगे या क्लास में रीड करने, जल्दी बताइए। रेस्ट यू विल रीड ऑन योर ओन या अभी वन रीड करने हैं आप लोगों ने? राइट इन द चैट। Okay, fine. In case you are having the problem, then let me know later on. हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। With this topic, we'll start fresh third unit in the next class and try to have your queries by the time on the Monday, because you are already having the long weekends. 4-5 days हैं आप लोगों के पास, तो जिसको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है, जौन सा टॉपिक लगे आपको रिपीट करना है, लेट मी नो।